Welcome once again on this second video on rural development. And before starting this session, I would like to go into the flashback. In the intro part of this video, we talked about what what are the major sources of livelihood in India and rural areas, and we found that the agriculture is the main source of livelihood. Okay, and then question arises why there is a need for development of villages, that is the rural areas. Then we come to know and we discuss in that session that more than two-thirds of India's population depends on agriculture, and that too one-third of the rural India still lives in poverty. So there is a need for that, and there should not be any doubt. And once again, one more important point was that we started the reforms in India, Big Bang reforms, 1991, new economic policy. Manmohan Singh was the finance minister and Narasimha Rao was the prime minister. So when we initiated the reforms process, then we found that the growth rate of agriculture declined, and it was almost 3% during the 1991 and 2012 period. And this reason was that, ये बहुत important question बन जाता है यहाँ से. The reason of decline was that the public investment dropped since 1991, and the reason was what? What was the reason for that decline? Because it was expected that the private sector will make investment. That did not happen. So there is a need for rural development, and if we want rural development, then we need to have policies, clear-cut policies. In that policies, we must have some actions for rural development, and reason we have to find out what are the causes of these areas, why they are backward, and we come to know that the socio-economic backwardness depends upon various issues. So in those we have to focus on those issues. For example, there is a lack of infrastructure in the rural areas, there is a lack of service sector opportunities, employment opportunities not available, that is alternate employment opportunities are not available. So there are various other causes are there. So now today we are going to focus on the what are the key issues in the rural development. Rural development के सामने क्या key issues हैं. So some of the areas which are challenging and need fresh initiatives for development in rural India includes, कुछ areas हैं जो challenges हैं, and वहाँ पर हमको एक फ्रेश इनिशिएटिव की ज़रूरत है, स्टार्टअप की ज़रूरत है. वहाँ पर स्टार्टअप की बात आजकल हम बहुत करते हैं, तो फ्रेश स्टार्ट की ज़रूरत है. और वो स्टार्ट क्या हो सकता है जो शामिल करे कि इन चीज़ों को, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मानव विकास पर वो जो फोकस करें, इंक्लूडिंग क्या है, लिटरेसी, साक्षरता, मोर स्पेसिफिकली फीमेल लिटरेसी, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ एड्रेसिंग बोथ सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ. Next is land reforms. Next is development of the productive resources of each locality. Infrastructure development like electricity, irrigation, credit marketing, transport facilities, including construction of village roads, feeder routes to nearby highways, facilities for agriculture, research and extension and information dissemination, उसका प्रचार प्रसार किया जाए. So infrastructure development किसी भी व्यवस्था को बदलने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत होती है. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका ह्यूमन बॉडी है और उस ह्यूमन बॉडी में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, अगर हम जो समझाने के लिए बोल रहा हूँ ऐसी बात है, अगर ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे है, हमारा वेन्स हैं, नर्व्स हैं, अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह है, अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं हो तो उसमें बहने वाला रुधिर जो है, ब्लड जो है, वो कैसे पहुँचेगा शरीर के विभिन्न भागों. अब इसी कॉन्सेप्ट को उठाइए. सड़कें हमारे वेन्स की तरह है, नर्व्स एंड वेन्स की तरह है. अगर सड़कें नहीं होंगी, ब्लड अर्थात लॉजिस्टिक्स जो सामान है वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएंगे, व्यापार नहीं होगा, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रुक जाएंगी. तो इस चीज़ को ऐसे समझा सकते. तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाइक इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, क्रेडिट मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, including construction of village roads and feeder roads to nearby highways,
facilities for agricultural research and extension and information dissemination. अब ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एक कॉन्सेप्ट जो है भारत में अगर कहा जाए रोड रिवोल्यूशन के फादर कौन है, रिवोल्यूशन की बात करो, रोड के कंस्ट्रक्शन की नहीं बात करो, रोड रिवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, तो अटल बिहारी वाजपेयी को कहा जाए तो रोड रिवोल्यूशन के फादर को कहा जा सकता है, बिकॉज द वे ही स्टार्टेड एंड देन उसकी रिवोल्यूशन तो आया, उस रिवोल्यूशन को एक नई जान, नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम अगर किया तो माननीय श्री नितिन गडकरी जी ने किया, जिन्होंने भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत कम समय में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का एक अंबार लगा दिया कि आने वाले कई सालों तक ही विल बी रिमेम्बर्ड एज ए रोड मैन ऑफ और इंफ्रास्ट्रक्चर मैन ऑफ इंडिया। अगर एक अलग से जी के बनना हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर मैन ऑफ इंडिया तो नितिन गडकरी जी। खैर, स्पेशल मेजर्स फॉर एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, अलग से एक प्रयास करना पड़ेगा, स्पेशल मेजर्स लेने पड़ेंगे, मतलब पॉलिसी बनानी पड़ेगी इस पॉवर्टी, गरीबी को दूर करने के लिए अलग से पॉलिसी बनानी पड़ेगी। एंड ब्रिंगिंग अबाउट सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन द living conditions of the weaker section of the population, emphasizing access to productive employment opportunities। तो अलग से हम जब गरीबी को दूर करने के लिए प्रयास करेंगे, इसके बाद ब्रिंगिंग अबाउट सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन द लिविंग कंडीशंस, लोगों के रहन सहन में जो हमारे गरीब तबके हैं उनके में अगर परिवर्तन लाएंगे तो उसकी वजह से जो है प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी। All this means that people engaged in farm and non-farm activities in rural areas have to be provided with the various means that help them increase the productivity। मीन्स हमारी सुविधाएं जो देने का जो तरीका होगा, we have to see the areas and based on the areas their need, their conditioning, geographical conditions, वहाँ पर economic जो opportunities है, and based on that scope we have to government must pass the facilities to them। मतलब राजस्थान में अगर हम क्या कहते फिशरीज के लिए दें फैसिलिटीज, लोन दें, तो दैट इज नो यूज एट ऑल। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, एरिया स्पेसिफिक प्लानिंग बनानी पड़ेगी, रीजन स्पेसिफिक प्लानिंग बनानी पड़ेगी, and based on that we can pass on the resources to them, and then productivity and production will seen there। So all this means that people engaged in the farm and non-farm activities in rural areas have to be provided with the various means that help them increase the productivity। जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं वहाँ प्रोडक्टिविटी मीन्स पर यूनिट जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए, तो वो प्रोडक्टिविटी। दे ऑल्सो नीड टू बी गिवन opportunities to diversify into various non-farm productive activities, farm productivities और non-farm productive activities। तो हमको नॉन फॉर्म एक्टिविटीज़ में जो डाइवर्सिफिकेशन जो है वो लाना पड़ेगा, और डाइवर्सिफिकेशन जितना ही होगा उतना ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, सच एज फूड प्रोसेसिंग। ट्रेडिशनल प्रोडक्शन क्या एग्रीकल्चर का टोमेटो हुआ, लेकिन टोमेटो से टोमेटो केचप बन जाए, पिकल मैंगो है, मैंगो से मैंगो पिकल बन जाए। इसी तरह जैम है या इस तरह के जो इंडस्ट्रीज हैं वो इस तरह काम से, कोकोनट, सब मैंने एग्जांपल लिया। अगर नारियल का एग्जांपल हो तो केरला जाना पड़ेगा। केरला में नारियल का जो अंदर का तो एक है कि नारियल का जो कोकोनट खाते हैं लोग, उससे तो ऑयल निकाल लो या कुछ और भी कर लो, जो भी हम कर सकते हैं, गिरी बना लो, कुछ मिठाइयों पर डालने के लिए कुछ भी। लेकिन नारियल का जो प्रोडक्ट है उसका पेड़ से के जो पत्ते हैं उससे क्या बनाया सकता है, जो नारियल का ऊपर का कवर होता है उस कवर से क्या बना सकते हैं, तो उसके बेस पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज खड़ी की जा सकती हैं और हैं भी वास्तव में देखा जाए तो उसकी मार्केटिंग करना उस पर सरकार को। तो ये मेरे कहने का मतलब कि एरिया स्पेसिफिक हमको प्रयास करना पड़ेगा। इनेबलिंग देम बेटर एंड मोर अफोर्डेबल एक्सेस टू health care, sanitation facilities at workplaces and homes and education for all would also need to be given top priority for rapid rural development। अब गांव के विकास के लिए किन किन चीज़ों पर फोकस करने की जरूरत है। Enabling them better and more affordable access to health care, स्वास्थ्य सुविधाओं पर उनकी जो पकड़ है, वो स्वास्थ्य सुविधाओं की जो फैसिलिटीज है उसमें काम करने की जरूरत है। दूसरा सैनिटेशन फैसिलिटीज, जहाँ रहते हैं वहाँ साफ सफाई, हाइजीन, इन सब चीज़ों की
निकासी हो पानी का। कई बार क्या होता है, बीमारी इन सब चीज़ों की वजह से होती है और डेथ रेट बढ़ जाती है। एट वर्क प्लेस, जहाँ काम करते हैं वहाँ भी इस तरह की व्यवस्था है। एंड होम्स, घर, और एजुकेशन फॉर ऑल, ऐसे जो लोग हैं जो राइट टू एजुकेशन जो है इन्हीं लोगों के लिए एक्चुअली है। तो एजुकेशन फॉर ऑल वुड ऑल्सो नीड टू बी गिवन टॉप प्रायोरिटी फॉर रैपिड रूरल डेवलपमेंट। तो ये हमारा था आज के इस वीडियो लेसन। मैंने फोकस किया इस बात पर कि रूरल डेवलपमेंट के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या इश्यूज हैं। अगर इन चैलेंजेस को हम ओवरकम कर लेते हैं, इनको हम इनसे दो चार हो जाते हैं, देन द डेवलपमेंट इज रूरल डेवलपमेंट इज पॉसिबिलिटी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।